ओके, सो टिल यस्टरडे हमने देखा ICAO location designator कि how to write the name of airport. Today we are going to practice name of the airport with chart number 1. तो Okay. अब आप बताओगे how many airports name you knows as per the chart. So if someone will ask about मुंबई का क्या होगा? मुंबई का चार्ट या कंट्रोल? ICAO location designator एयरपोर्ट का नाम इन द फॉर्मेट ऑफ VABB इस टाइप से. ओके 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 हाँ. ओके सो मुंबई का V A B B ए B ठीक B. है. ओके, वेरी गुड. अबाउट औरंगाबाद औरंगाबाद का V A A U. AU. नागपुर नागपुर हाँ V A N P. NP. Good one. Now about जबलपुर. जबलपुर Hmm. where is it is Just in above the map. नागपुर. हाँ, here. कहाँ के नागपुर मुझे दिख नहीं रहा है किधर है ये. नागपुर के ऊपर मैंने सर्कल किया है. ओके जूम कर रखा. ओके सो V A J B. JB. Good one. Now खजुराहो खजुराहो हाँ ये इसी में था. हाँ ठीक है. V A K J. KG. Okay. So these are the some of the normal airports. Now tell me about Bhopal. भोपाल is for V A B L. ओके, इसी में एक्सेप्शन है. ठीक है, दैट भोपाल का VABL नहीं, भोपाल का है VABP. तो इसको ध्यान में रखना है. V A B P. हाँ ठीक है, ओके डन. अबाउट इंदौर 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 V A I D. ठीक है, इंदौर का VAID. डन. अबाउट भावनगर. भावनगर देखो इधर. भावनगर V A B R. BR चलेगा. ठीक है. अबाउट वडोदरा. वडोदरा is Delhi FI region I think. नहीं नहीं Right? नहीं, वेस्टर्न ओनली. Okay. तो V A Q Z. विवेक जुलू. ठीक है, वेरी गुड. देन अहमदाबाद. अहमदाबाद V A A E. इन एक्चुअल दिस इज VAAH. ठीक है, अल्फा होटल. अहमदाबाद हाँ, V A तो A हमने H. हाँ ठीक है, ओके अहमदाबाद का VAAH. उदयपुर उदयपुर V A U D. वेरी गुड, VAUD. डन. विल वर्क. नाउ कमिंग टू द नॉर्दर्न FIR. जोधपुर. जोधपुर हम्म हाँ D V I J O. VIJO. ओके. देन जयपुर. ओके V I J P. P. ठीक है. देन अबाउट ग्वालियर. ग्वालियर it comes V I no V A नहीं नहीं, G. VI ही होगा. दिल्ली FIR है. VI. ओके ओके
ओके, VIGA। ठीक है। आगरा, VIAG। VIAG, ठीक है। दिल्ली, वेरी पॉपुलर। दिल्ली इज VIDN। नहीं, DP। DP, ठीक है। sorry, DP, yes, DP। कोई नहीं, इट विल वर्क। VIDP। ठीक है। सो इन द चार्ट फर्स्ट देयर इज 3 एक्सेप्शन, यू कैन मेक अ सेपरेट नोट ऑफ इट। ठीक है, अलग से इन तीनों का नोट बना लो। फॉर अहमदाबाद दिस इज VAAH, ठीक है। फॉर भोपाल दिस इज VABP, and for Delhi VIDP, Delta Papa. That's all. ओके So in the chart 1 we have 3 exceptions. Okay, so make a note of it so that in future you won't be doubtful over these. ओके। Chalo, Ahmedabad, Bhopal and Delhi. So this was the practice of chart reading techniques. Sorry, echolocation designator. Now please do perform readability check. Okay, and for ATC, my call sign will be Delhi Tower. Readability check. Go ahead. This is Delhi Tower. How do you read? गलत, बिल्कुल गलत। ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। और Sierra Alpha Mike, are you able to perform readability check? Yes. Delhi Tower, Victor Tango, Sierra Alpha Mike, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? ठीक। Victor Tango, Sierra Alpha Mike, Delhi Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, reading you 5. And while saying Sierra na, I have heard Sierra. Try to say it Sierra. ठीक है, Sierra, like Okay. this. Okay. Sierra Alpha Mike. Done. So What this was about the, frequency? Like in between this, we have to tell frequency also, right? yes, if you want, you can mention it here. ठीक है, Okay, on it's not like 1 2 3 mandatory, right? decimal. By the rule it is mandatory, लेकिन RT में ना Okay. क्या करते हैं हम लोग, हाँ. प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे इस पे आएंगे। अपने को Okay. एग्जामिनर बोलते हैं कि मेरे को फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ मत बताओ, सीधा मेन मुद्दा Okay. पे आओ, like that. So Okay. that time we can avoid. So if frequency is being mentioned, then that will be mentioned here on 1 2 3 decimal 5, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? This is the call for readability check. Clear? And by Okay. example I have told कि कभी भी this is, ठीक है, how do you read me, ये सब नहीं यूज करना है, in no case. ठीक है, so this was the readability check. Very good. Now we'll move to the next topic, whatever we had covered till yesterday. Just let me go once to the calendar. What is it saying? आज हम लोग को पढ़ना है फ्लाइट रूल्स एंड डेफिनेशन, फ्लाइट प्लान एंड आईटा कोड। ओके, तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम बचा तो we'll open the third one, but today we are going to sit for 2 hours, ठीक है, because we need to cover the syllabus as well in timely manner. ऐसा नहीं हो कि सिलेबस को ज्यादा ही पीछे रह जाए। So 2 hours का हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं over today's class. Now
Okay. So first we'll look at the flight rules. ठीक है, जैसा कि हमने कल FIR रीजन्स के क्वेश्चन में सुना था या देखा था कि if somebody is asking how many FIR regions are there, then what you are going to tell? How many FIR region are there? FIR region कितने हैं? And what are their codes? 4. It's No, four. not 4. Not 4. There are a 4, but in the Kolkata FIR region, there are having a 2 part. I think. Very good. I think नहीं, सही है, यही है. Delhi, Mumbai, Chennai, हाँ. Kolkata, and inside Kolkata there are a 2 part. हाँ, कौन सा? One is Kolkata. हाँ. And another is Guwahati. Guwahati, right? Okay. So दिल्ली मुंबई का FIR कोड क्या है? दिल्ली FIR कोड का कोड क्या है? Delhi is I, and Mumbai is A, Chennai O, and Kolkata E. कोलकाता एंड गुवाहाटी दोनों E. ठीक है. एंड गुवाहाटी कंट्रोल कौन से फ्लाइट लेवल तक कंट्रोल करता है? गुवाहाटी FIR रीजन till 26,500 feet. very good. ठीक है, till 26,500 feet Guwahati control is taking the charge. So like in FIR question, if somebody will ask how many FIR region are there, so neither you can say 4 nor you can say 5. So you need to say like that. Basically there are 4 FIR region only. Under the Kolkata command center there is one more FIR working as Guwahati control, but up to certain height only. So this is known as FIR regions in India, like that. Similarly, if somebody will ask how many flight rules are there, so we have learned so far only 2, IFR and VFR, instrument flight rule and visual flight rule. Okay, but in flight planning, okay, you need to say basically there are 2 flight rule only, IFR and VFR, but for the planning and operation of aircraft we are having 4 flight rules. ठीक है, कौन-कौन से हैं we will see. Now सबसे पहले फ्लाइट रूल का मतलब क्या होता है? फ्लाइट रूल का मतलब है IFR एंड VFR. क्या होता है IFR एंड VFR? इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल मतलब पायलट जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा तो उसको विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सामने देख के जहाज हो रहा है, या फिर विजिबिलिटी का कुछ लिमिटेशन भी रहेगा तो चलेगा कि अगर 50 मीटर भी दिख गया तो इट इज इनफ. ठीक है. सो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल सेज कि हमने आपके एयरक्राफ्ट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं कि अगर आप कॉकपिट के बाहर नहीं भी देख पाओ तो आपको जहाज उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. दैट सेज बाय द IFR. सो IFR इज सच, ठीक है, दैट व्हेन एयरक्राफ्ट इज बीइंग ऑपरेटेड, ठीक है, when aircraft is being operated completely relied on the instrument readings. इंस्ट्रूमेंट ने जो बताया उस पर भरोसा कर लिया. इंस्ट्रूमेंट डेटा एंड इंडिकेशन, अगर इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है 2000 फीट मतलब वी आर एट 2000 फीट. जरूरी नहीं है कि पायलट खिड़की से झांक के देखेगा कि एक्चुअली वी आर एट 2000 फीट और नॉट. ठीक है. एंड इंडिकेशंस, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट से वी विल बिलीव ऑन दैट. In this case, no visibility outside of the aircraft is required. बाहर देखने की जरूरत नहीं है. Pilot may operate and take necessary action on the basis of readings and instructions comes from aircraft instrument. Reading मतलब aircraft instrument ने बताया 2000 feet, तो वो समझ जाएगा it is 2000 feet. Now अब बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है या लैंडिंग गियर व्हील अप लेना है वो डिसाइड कर लेगा. फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट से, लाइक अगर सामने पहाड़ है, ठीक है,
तो एयरक्राफ्ट में टेरेन डेटाबेस होता है, टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम, GPWS या TAWS उसको बोलते हैं। तो वो वार्निंग देगा पुल अप, पुल अप। तो अगर ये वार्निंग आई इंस्ट्रूमेंट से तो पायलट अपने आप जहाज का एलिवेटर ऊपर करेगा, मतलब एयरक्राफ्ट का नोज अप करेगा। वो क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाएगा कि सामने कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट ने बोला पुल अप, मतलब आपको पुल अप करना है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ने कुछ अनसेफ डिस्टिंग्विश किया है आगे, लाइक दैट। अगर इंस्ट्रूमेंट ने बोल दिया कि सामने मौसम खराब है, मतलब मौसम खराब है। ठीक है। Such aircraft may have a large number of sensors and instruments, ठीक है, which makes aircraft fly safely, distinguishing all situations are normal and provide intelligence in case of abnormal situation। कहने का मतलब IFR वाले एयरक्राफ्ट में इतने सारे सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं कि आपको कॉकपिट से बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इन दिस फ्लाइट रूल, इंस्ट्रूमेंट ने जो बोला आप उसको प्रायोरिटी दोगे। इंस्ट्रूमेंट ने कहा पुल अप, तो आपको पुल अप करना है। क्रॉस चेक करने में अगर डिले करोगे तो दैट मे के कॉज एक्सीडेंट और एनीथिंग। तो इंश्योर करता है एयरक्राफ्ट का इंस्ट्रूमेंट्स की सब कुछ ठीक है, और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन। इंटेलिजेंस क्या हुआ? यही कि पुल अप, एयरक्राफ्ट का नोज अप करिए, अपने एलिवेटर को खींचिए, पुल अप, अपने साइड खींचिए, लाइक दैट। गॉट इट? सो दिस इज IFR. Next one is VFR, visual flight rule. Visual flight rule is when aircraft is being operated by looking outside of the cockpit. ठीक है, by looking outside of the cockpit, पायलट कॉकपिट से देख के ऑपरेट करेगा। और इस केस में इंस्ट्रूमेंट पे ब्लाइंड रिलाई नहीं करेगा, पायलट खुद पता लगाएगा कि बाहर सब कुछ ठीक है कि नहीं। लाइक अगर एयरक्राफ्ट का इंस्ट्रूमेंट बता रहा है इट इज 2000 फीट, अल्टीमीटर अगर बता रहा है 2000 फीट, तो पायलट एक बार खिड़की से झांक के भी देखेगा कि ऑलमोस्ट 2000 फीट का हाइट रीच किया है कि नहीं। सो बाय द एक्सपीरियंस दे कैन नो यस ये लगभग 2000 फीट हाइट है। तो ऐसा नहीं कि अल्टीमीटर बता रहा है 2000 फीट और अभी हम रनवे पे ही हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पे रिलाई करेंगे, लेकिन बाहर देखते हुए पायलट जिम्मेदारी लेगा कि सब कुछ ठीक है। एंड ensuring सेफ इन्वायरमेंट आउटसाइड, बाहर का मौसम खराब है कि नहीं है पायलट खुद पता लगाएगा। लेकिन VFR के केस में ऐसा नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया, नो। ठीक है, इन दिस रूल इंटेलिजेंस में ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स, इंस्ट्रूमेंट अपना काम करता रहेगा, क्योंकि एक बार एयरक्राफ्ट में जो इंस्ट्रूमेंट लग गया वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन VFR जब फ्लाई करेगा पायलट, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट की रहेगी। वो ये नहीं बोल सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ने बोला पुल अप तो मैंने पुल अप कर लिया, नहीं। ठीक है, खुद जिम्मेदारी लेगा। सो बेसिकली दिस इज अ फ्लाइट रूल जो कि पायलट चुनते हैं उड़ने से पहले कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं इसमें IFR फ्लाई करूंगा, ठीक है, या मुंबई से दिल्ली जाऊंगा इसमें VFR फ्लाई करूंगा। VFR फ्लाइंग में पायलट पे लोड ज्यादा रहेगा, हमेशा उनको चौकन्ने रहना पड़ेगा। IFR फ्लाइंग में वो एक बार टेक ऑफ कर लिए, ऑटो पायलट सेट कर दिया, फिर वो रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज IFR एंड VFR। होप यू गॉट द पॉइंट, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ इट इज द रूल कि आप विजुअल फ्लाइट रूल के थ्रू एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हो ओनली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ सनराइज, यानी मॉर्निंग में सूरज उगने के 30 मिनट बाद, और इवनिंग में सूरज डूबने से 30 मिनट पहले तक। इसी बीच में आप VFR फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको VFR ऑपरेशन का परमिशन नहीं मिलेगा। सूरज उगने के 30 मिनट बाद और सूरज डूबने से 30 मिनट पहले पहले तक आप VFR में फ्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको VFR का परमिशन नहीं मिलेगा। प्लस
अगर आप 15,000 फीट से ज्यादा पे फ्लाई करना चाहते हो तो आप मैंडेटरी आईएफआर में फ्लाई करोगे। 15,000 फीट के ऊपर भी आप वीएफआर में फ्लाई नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। Now, so these are the two basic flight rules: instrument flight rule and visual flight rule. But on the basis of operation, we are having four. How? Suppose एक छोटा सा एयरपोर्ट है कोई, टेक एन एग्जांपल ऑफ मेरठ। ठीक है, मेरठ का एग्जांपल ले लेते हैं, मेरठ सिटी में। ठीक है, मेरठ सिटी में एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसमें किसी भी टाइप का एटीसी वगैरह नहीं है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, छोटा सा एयरफील्ड है। वहां से एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा और दिल्ली जाना है। दिल्ली एक बड़ा एयरपोर्ट है जिसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट, रडार, एटीसी सब लगा हुआ है, कंट्रोल्ड एयरफील्ड है। तो जब कोई एयरक्राफ्ट मेरठ से टेक ऑफ करेगा, वो आईएफआर में टेक ऑफ कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है जो कि आईएफआर फ्लाइंग को मैच कराए। ठीक है, तो मेरठ से उसको वीएफआर में ही टेक ऑफ करना पड़ेगा, और दिल्ली में उसके पास व्यवस्था है तो आईएफआर में लैंड कर जाएगा। ठीक है, सपोज क्या होता है कि आप ट्रेवल करके अपने जहां पे आप अभी जॉब कर रहे हो वहां से घर जाते हो। ठीक है, गांव में। तो आप जिस सिटी में रह रहे हो वहां पे फुल फ्लैज फैसिलिटी है, फर्निशिंग है, अच्छे खासे किचन है, डोर्स हैं, टैप वाटर है, हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी है, और ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल है, मेट्रो है, बहुत सारे फैसिलिटी है। बट गांव में उतने सारे फैसिलिटी नहीं रहते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि गांव में रहना छोड़ देते हो, वहां पे भी आप किसी न किसी तरह से मैनेज करके सरवाइव करते ही हो, 8 दिन 10 दिन जो भी आपका घर है अपना। तो सिमिलरली जो छोटा एयरपोर्ट है जहां पे फैसिलिटी कम है, तो वहां पर वीएफआर से ऑपरेट कर लेगा। लेकिन जब सिटी में आ गया, जिस एयरपोर्ट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आईएफआर में लैंड कर जाएगा। या फिर शाम को 4 बजे डिपार्चर लेना है तो वीएफआर में डिपार्ट ले लिया, बट रात हो जाएगी तो वीएफआर में फ्लाई नहीं कर सकता है, तो उसको बीच में ही आईएफआर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रात में आईएफआर मैंडेटरी है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन वाला फ्लाइट फेज है, ठीक है, इसको भी फ्लाइट रूल के अंदर में डिफाइन किया गया है। कैसे? पहले आप वीएफआर में टेक ऑफ किए, ठीक है, और बाद में आईएफआर में कन्वर्ट कर लिए, तो इसको बोला गया फ्लाइट रूल जुलू, जेड। पहले आपने आईएफआर में कन्वर्ट किया और बाद में वीएफआर में चेंज हो गए, तो इसको बोला गया फ्लाइट रूल यांकी, वाई। क्लियर? बेसिकली दो ही है, आईएफआर एंड वीएफआर। ठीक है, जब आप वीएफआर से आईएफआर में कन्वर्ट होते हो इट इज जुलू, जब आप आईएफआर से वीएफआर में जाते हो इट इज यांकी। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. So whenever somebody will ask how many flight rules are there, so you need to say in both way कि basically we have IFR and VFR only, ठीक है, but on the basis of operation it is being identified into 4 rules: IFR, VFR, Yankee and Zulu. तो इसमें Yankee क्या हो गया? When you are converting from IFR to VFR, तो flight rule Yankee, and when you are converting from VFR to IFR, that is flight rule Zulu. Done? I hope I was able to clear this topic to all. ठीक है? Yes, sir. So if somebody will ask about flight rules, these are the things. ठीक है? कोई डाउट है? Sierra Alpha Mike? Any other station? Any doubt? No. ठीक है. Now our next topic is flight plan. ठीक है? And we have also seen ITA codes. We need to see here. अब देखो,
आप इंडिया में जब कोई भी कार या बाइक चलाते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। सपोज आपको दिल्ली से घर जाना है, आपके पास अपना खुद का कार है, तो जाओ आराम से, कार उठाओ, चल दो, घर जाओ, पहुंचो। बट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एन एयरक्राफ्ट, देन फर्स्ट यू नीड टू सबमिट योर फ्लाइट प्लान। ठीक है, कि आपको कहां से कहां तक जाना है, कितने लोग आपके जहाज में रहेंगे, किस रूट के थ्रू जाना है, ये सब आपको बताना पड़ता है टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि हम अपना एक जहाज दिल्ली से मुंबई लेके जाएंगे, 200 पैसेंजर है, वाया जयपुर, वाया राजस्थान, जो भी रास्ता है, वाया रूट, ऐसे करके फ्लाई करेंगे। आप रैंडम कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हो इन द इंडिया। पहले आपको अपना प्लान बताना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। सो व्हाट इज द फ्लाइट प्लान, हाउ इट इज बीइंग सबमिटेड, what are the informations inside this, today we are going to see that। ठीक है, so first about flight plan। होता क्या है ये flight plan? is a document, ठीक है, it is simply a document which provides or specifies, ठीक है, जो कि बताता है इंफॉर्मेशन किसको, टू द एयर ट्रैफिक सर्विसेज यूनिट्स, जितने भी एटीसी बैठे हैं ना, उनको बताता है कि हमारा एक प्लान है related to intended flight or portion of flight for an aircraft। मतलब आपने सोचा कि दिन में 3 बार प्लान है हमारा, एक बार मुंबई से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से कानपुर जाएंगे, फिर कानपुर से लखनऊ जाएंगे, और लखनऊ से फिर मुंबई आएंगे। सो दिस इज कंप्लीट सेक्टर। तो आप चाहो तो पूरा प्लान एक बार में बता दो, या फिर टुकड़ों में बताओ। पहले दिल्ली तक का अप्रूवल ले लिया, फिर कानपुर तक का अप्रूवल ले लिया, फिर लखनऊ का अप्रूवल ले लिया, फिर मुंबई का अप्रूवल ले लिया। तो आप चाहो तो टोटल 4 फ्लाइट प्लान फिल कर सकते हो, या फिर एक ही फ्लाइट प्लान में चारों डिटेल फिल कर दो, आइदर फुल और पोर्शन ऑफ एन फ्लाइट। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लाइट प्लान, कि आप अपने फ्लाइट का इंटेंशन बताओगे। डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग सबमिशन, कि कहां सबमिट करना है, कंटेंट्स क्या क्या होंगे इसमें, कंप्लीशन कैसे कंप्लीट करोगे, और अगर आपको बीच में चेंज करना पड़े कि सर मुंबई जाना था अब नहीं जाऊंगा, ठीक है, आज रात कानपुर में रुकेंगे, तो इस टाइप के भी चेंजेस, और क्लोजिंग ऑफ ए फ्लाइट प्लान, कि ठीक है फ्लाइट प्लान कैंसिल करना है। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, कैसे सबमिट करना है, कैसे चेंजेस को इन्फॉर्म करना है, कैसे कैंसिल करना है, ये सब डिस्क्राइब किया गया है इन द इकाओ एनेक्सर 2 रूल्स ऑफ द एयर। ठीक है, इकाओ एनेक्सर 2 का नाम है रूल्स ऑफ द एयर, एंड आई होप you guys are sitting with pen and paper in your hand। whatever extra I am saying it here, kindly take a note। छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएगी क्लास में इन द पार्ट 2। तो इकाओ एनेक्सर 2 में लिखा हुआ है कि फ्लाइट प्लान कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, क्या क्या कंटेंट रहेगा, ये सब। नाउ फ्लाइट प्लान में बी फाइल्ड, ठीक है, ये फील्ड नहीं है, ये फाइल्ड है, मतलब सबमिशन में बी सबमिटेड एज रिटन डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या होता था, फ्लाइट प्लान का फॉर्मेट लोग पेन से भरते थे, हाथ से, और एटीसी में जाके जमा करते थे। फिर क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, की हाथ से फॉर्म भर लो, स्कैन करके ईमेल कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। और इन द मोड एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, फ्लाइट प्लान सबमिट हो सकता है इन द रिटन फॉर्मेट, इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, और जिस देश का जैसा टेक्नोलॉजी उस देश का वैसा व्यवस्था। मतलब इंडिया में 2015 से पहले वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सब ज्यादा नहीं थे, तो आपको हाथ से फॉर्म भर के ईमेल करना पड़ता था। फिर जैसे जैसे आईटी रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, एप्लीकेशन आ गए कि ऑनलाइन जाके फ्लाइट प्लान भर दो। तो किस देश में क्या सिस्टम चलेगा,
ये डिसाइड करेगा वहां का अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब होता है देश, तो उस देश का अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि हमारे यहाँ पे फ्लाइट प्लान का क्या सबमिशन ऑफ रूल है। अभी भी आप कुछ अफ्रीकन कंट्री में जाओगे तो ऑनलाइन फ्लाइट प्लान का व्यवस्था नहीं है, आपको वहां पे इलेक्ट्रॉनिक भेजना पड़ेगा, स्कैन करके ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग फ्लाइट प्लानिंग एंड सबमिशन ऑफ प्लान। नाउ यू कैन सी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए फ्लाइट प्लान। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान का ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, चाहे आप हाथ से भरो, चाहे ईमेल करो या किसी वेबसाइट के थ्रू भरो, लास्ट में जब आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे ना तो इसी फॉर्मेट में निकलेगा। फॉर्म कैसे भी भरो, प्रिंट आउट इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू आइदर पीडीएफ और हार्ड कॉपी इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। नाउ क्या क्या रहता है इसमें, जस्ट हैव अ लुक, आई एम गोइंग टू शेयर यू इन द डिटेल एज वेल। अभी के लिए बस देखो कि इसमें रहता क्या क्या है। दिस इज एड्रेसी डिजिग्नेटर, डोमेस्टिक में जरूरत नहीं होती है, इंटरनेशनल में मैं बताऊंगा होता क्या है। ये 8 डिजिट का एड्रेसी डिजिग्नेटर होता है। आई विल टेल यू दैट लेटर, फॉर नाउ लीव इट, ये जरूरी नहीं है फिलहाल अपने लिए, एग्जाम के लिए भी नहीं। फिलिंग टाइम, कब आपने फ्लाइट प्लान भरा, ओरिजिनेटर मतलब कंपनी का नेम। ठीक है, उसके बाद नंबर, कितने सेक्टर करने हैं आपको, 1 2 3, 3 सेक्टर है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, लाइक दैट, या फिर एक ही प्लान है कि यहां से मुंबई जाना है। एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन मार्क्स या फिर कॉल साइन, या आपके एयरक्राफ्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन है। देन फ्लाइट रूल, आईएफआर, वीएफआर, यंकी और जुलू। टाइप ऑफ फ्लाइट, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मतलब आपके एयरक्राफ्ट का टाइप में यहां पे आता है एयरक्राफ्ट का मॉडल। ठीक है, दो चीजों में कंफ्यूज मत होना, समथिंग इज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड समथिंग इज टाइप ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब ऑपरेशन टाइप, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, ट्रेनिंग, मेडिकल, लाइक दैट। इन इंडिया मेडिकल फ्लाइट नॉन शेड्यूल्ड के कैटेगरी में आता है, बट इन फॉरेन मेडिकल का अलग से फ्लाइट ऑपरेशन टाइप है बहुत सारे कंट्रीज में, बट इन इंडिया नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस में ही मेडिकल आता है। सो टाइप ऑफ फ्लाइट, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, ट्रेनिंग, ये ऑपरेशन का टाइप है। बट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज एयरक्राफ्ट मॉडल। ठीक है, बोइंग 737, एयरबस 320, लाइक दैट। देन वेक टर्बुलेंस, मैं आपको बताऊंगा। वेक टर्बुलेंस होता है कि जब आप अपने एयरक्राफ्ट का इंजन चालू करते हो तो वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करता है। देन व्हाट आर द स्पेशल इक्विपमेंट्स फिटेड ऑन योर एयरक्राफ्ट, आईएलएस कैटेगरी 2 3 4 क्या है। देन डिपार्चर एरोड्रोम इन द फॉर्मेट ऑफ इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर, देखो 4 डिजिट ही दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे दिल्ली लिखोगे अटेगा ही नहीं, तो इन द फॉर्मेट ऑफ 4 डिजिट ओनली। ठीक है, VIDP, डिपार्चर एरोड्रोम। टाइम, दिस टाइम इज डिपार्चर टाइम 1600 मतलब 4 बजे, बट दिस टाइम रिटन इन द फ्लाइट प्लान आर ऑलवेज इन UTC, IST में नहीं होता है, UTC में होता है फ्लाइट प्लान का टाइम। देन योर क्रूजिंग स्पीड, योर क्रूजिंग लेवल, किस अल्टीट्यूड पे क्रूज करना चाहते हो, कौन सा रूट फॉलो करोगे, रूट का इंफॉर्मेशन। डेस्टिनेशन एरोड्रोम, कहाँ जाना है, बेंगलोर। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम, आपका प्लान कितने देर का है। आपने जब फ्लाइट प्लान किया होगा तो आपको क्या लगा कि टोटल 2.5 घंटा आप उड़ पाओगे इन द एयर, यस, तो आपका फ्लाइट टोटल 2.5 घंटे का है। ठीक है, सो दैट इज एस्टिमेटेड प्लान, चेंज हो सकता है बट हमने एस्टिमेट लगाया कि समाव 2.5 घंटा लग जाएगा हमको। देन अल्टरनेट एरोड्रोम, अगर बैंगलोर में लैंड नहीं कर पाए तो कहाँ लैंड करोगे, चेन्नई। ठीक है, सेकेंड अल्टरनेट, अगर चेन्नई में भी लैंड नहीं कर पाए तो कहाँ लैंड करोगे, कोचिन, लाइक दिस। देन वी आर हैविंग सर्टेन मोर इंफॉर्मेशन ऑन द प्लान। ठीक है, विच आर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, देखो लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, जो कि आप सिर्फ फ्लाइट प्लान में सबमिट कर दो लेकिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या है? इंड्योरेंस। आपका 2.5 घंटे का फ्लाइट प्लान था, लेकिन आपका एयरक्राफ्ट टोटल कितना उड़ेगा? क्या 3 घंटा, 3.5 घंटा उड़ सकता है? तो आपके एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस आपके प्लान से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इन द सेंस कि सपोज आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप उतने का ही सामान खरीदोगे जितना पैसा आपके पॉकेट में है। तो आपका एयरक्राफ्ट अगर टोटल 4 घंटा फ्लाई कर सकता है, तो आपको 3-3.5 घंटे का ही फ्लाइट प्लान अप्रूव होगा। 4.5 घंटे का फ्लाइट प्लान आपका अप्रूव नहीं होगा, प्रोवाइडेड फ्यूलिंग कहीं करवा लो। तो इंड्योरेंस कि इतने फ्यूल के साथ कितने देर उड़ पाओगे, टोटल कितने पैसेंजर हैं आपके जहाज में, आपके एयरक्राफ्ट में ईएलटी है, यस, कोई अदर दूसरा इक्विपमेंट है, यस, नो, इसमें टिक लगा दोगे। सर्वाइवल इक्विपमेंट आपके एयरक्राफ्ट में क्या क्या है? लाइफ वेस्ट, लाइफ जैकेट है। अगर लाइफ वेस्ट और लाइफ जैकेट है, तो किस एरिया में सर्वाइवल आपका पॉसिबल है? क्या पोलर रीजन में, रसिया, इंग्लैंड या फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब सारे कंट्रीज में सर्वाइव कर पाएंगे? ठंडे जगह पे आपका पैसेंजर सर्वाइव कर पाएगा? यस, नो। डेजर्ट में सर्वाइव हो पाएगा? यस, नो। मेरी टाइम सर्वाइवल पॉसिबल है, मतलब आपके एयरक्राफ्ट में लाइफ राफ्ट है कि नहीं, नाव, गुब्बारे वाला नाव है कि नहीं, जंगल में सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं? तो किस एरिया में आपके एयरक्राफ्ट का पैसेंजर सर्वाइव कर पाएगा अगर क्रैश हुआ, तो वो लिखोगे। ठीक है। आपके एयरक्राफ्ट में जो लाइफ जैकेट हैं, कौन से कलर के हैं? फ्लोरोसेंट वाले हैं या नॉर्मल हैं? टॉर्च लाइट वगैरह है? VHF UHF जो इमरजेंसी पोर्टेबल ट्रांसमीटर है, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर सकता है? ठीक है। प्लस उसके बाद आएगा आपके एयरक्राफ्ट का कलर, कि आपका एयरक्राफ्ट कौन से कलर का है और मार्किंग क्या है। मतलब अगर आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कि कितने लोग हैं उधर। सॉरी, ये आप ही का एयरक्राफ्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लू, अच्छा ये इंडिगो का ही एयरक्राफ्ट है, लाइक दैट। ठीक है। तो आपके एयरक्राफ्ट का कलर क्या है और मार्किंग किस टाइप से किया गया है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज एडिशनली प्रोवाइडेड टू ATC। और फ्लाइट प्लान को भरने की जिम्मेदारी, ठीक है, हमेशा पायलट इन कमांड की होती है। बट शेड्यूल एयरलाइन में पायलट्स इतने ज्यादा काम करते हैं और एयरक्राफ्ट लिमिटेड है कि उसके अंदर में रख दिया गया है फ्लाइट डिस्पैचर को। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पायलट इन कमांड की, सिग्नेचर पायलट इन कमांड का ही होगा, लेकिन उसके अंदर में जूनियर स्टाफ रहेंगे फ्लाइट डिस्पैचर्स, जो कि फ्लाइट प्लान को भर के रेडी करके पायलट को पकड़ा देंगे कि सर ये रहा प्लान, आप नजर मार लो। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लाइट प्लान भरने की जिम्मेदारी किसकी है, पायलट इन कमांड, उसके बिहाफ में भले कोई भर दे, लास्ट साइन पायलट इन कमांड का ही होगा। क्लियर? Yes. So out of these many information over the flight plan, only few informations are important. ठीक है। I'll tell you how many are important information and you need not to bother about all those information. अरे इतना सारा बता दिया, कितना ध्यान रखूं। ठीक है। So only 13 informations are vital. ठीक है। बाकी सब पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 13 इंफॉर्मेशन आर वाइटल। सो वील सी वन बाय वन कि क्या क्या जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला, आपके एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन क्या है, विक्टर टेंगो सियरा अल्फा माइक, विक्टर टेंगो रोमियो रोमियो माइक, लाइक दैट। यानी आपके एयरक्राफ्ट का किस नाम से बुलाया जाए, अगर आपको कॉल करूंगा तो किस नाम से कॉल करूं। ठीक है। अब आपके एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन, आपके एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, प्लस आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो इंडिगो का फ्लाइट है, या फिर अगर आप कभी एरोप्लेन से गए हो या अगर आपने कभी एरोप्लेन पे चढ़ा होगा तो देखते होगे फ्लाइट का नंबर लिखा रहता है इस टाइप से 6E762।
AI-167 या फिर स्पाइस जेट वगैरह करेगा तो SG-664। ये भी एक तरह का कॉल साइन है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल एयरलाइन में एक ही एयरक्राफ्ट बहुत सारे सेक्टर करते हैं। एक ही एयरक्राफ्ट दिन में 5 बार 6 बार चलेगा। पायलट चेंज हो जाएंगे, क्रू चेंज हो जाएंगे, इंजीनियर्स चेंज हो जाएंगे, जहाज सेम रहेगा। ठीक है, तो हर एक फ्लाइट का नंबर दे दिया जाता है। एयरक्राफ्ट कोई सा भी रहे, वीटी रजिस्ट्रेशन उसका कुछ भी रहे, उसका फ्लाइट आईडी चेंज हो जाता है। तो उसका कॉल साइन आप दो तरीके से बोल सकते हो। चाहे तो आप VT सियरा रोमियो माइक बोल लो, या फिर आई फ्लाई 762 बोल लो। हम लोग देखेंगे इस चीज को क्या है, बट अभी के लिए इतना समझो, फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दो या उसका फ्लाइट आईडी बोल दो। नेक्स्ट वन इज क्रूजिंग फ्लाइट लेवल। आप जो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करोगे तो उस टाइम पे आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड क्या रहेगा। देन वेक टर्बुलेंस, हम लोग इसको भी देखेंगे। वेक टर्बुलेंस क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने जहाज का इंजन ऑन करोगे तो कितना एरिया ऑफ एयर को डिस्टर्ब करेगा पीछे, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ एयर को वो टर्बुलेंट करेगा, तो दैट इज वेक टर्बुलेंस। देन डिपार्चर एरोड्रोम, कौन से एरोड्रोम से आप टेक ऑफ करोगे, तो उसका लोकेशन डेजिग्नेटर इन द फॉर्मेट ऑफ लोकेशन डेजिग्नेटर। टाइम, जो यहाँ पे टाइम था, शेड्यूल डिपार्चर टाइम, कि आपके हिसाब से आपके फ्लाइट का कितने बजे डिपार्चर है। फ्लाइट रूल, कौन सा फॉलो करोगे, IFR, VFR, यंकी या जूलू। देन डेस्टिनेशन एरोड्रोम और अराइवल एरोड्रोम, कि आपका एयरक्राफ्ट पहुंचेगा किधर, लोकेशन डेजिग्नेटर के फॉर्मेट में। टाइप ऑफ फ्लाइट, एज आई टोल्ड, इट इज अ ऑपरेशन टाइप, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, ट्रेनिंग। ऑल्टरनेट एरोड्रोम, अगर आप एक एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाए तो दूसरा ऑल्टरनेट कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे जाना चाहोगे। देन किस रूट को फॉलो करोगे, आपके प्लान्ड रूट्स का इंफॉर्मेशन, डिपार्चर से लेके डेस्टिनेशन तक। हम लोग कई बार प्लान करते हैं ना कि दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से जाएंगे, आगरा एक्सप्रेसवे से जाएंगे, लाइक दैट। सिमिलरली कौन से रूट से प्लान किया आपने। या फिर आप कई बार बोलते हो कि घर से ऑफिस जाना है तो आज रोड से जाएंगे, या फिर बोलोगे मेट्रो से जाएंगे, तो आपका प्लान्ड रूट क्या है। फिर इक्विपमेंट, आपके एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप चाहते हो कि उसका खास मेंशन करूं कि हमारे एयरक्राफ्ट में ऐसा भी एक इक्विपमेंट है। तो बेसिकली इन दिस सेक्शन ILS कैटेगरी का मेंशन किया जाता है कि ILS कैटेगरी 2 अप्रूव, ILS कैटेगरी 3 अप्रूव, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। देन आपके एयरक्राफ्ट का टाइप, दिस इज एयरक्राफ्ट मॉडल, एयरबस, बोइंग, like that, and any other information necessary to seek attention of ATC। सपोज आपके एयरक्राफ्ट में कोई मेडिकल पैसेंजर बैठा है तो आप उस चीज को मेंशन करोगे कि मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, ताकि आपको वो प्रायोरिटी दे। ऐसा नहीं कि भीड़ में बोल दे कि लाइन में लग जाओ। हम लोग जब नॉर्मल लाइन में लगते हैं तो या फिर कभी मेट्रो में भी आपने सीट्स वगैरह देखे होंगे तो रहता है ना, सीनियर सिटीजन के लिए सीट रिजर्व है, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। सिमिलरली एयरपोर्ट पे भी कुछ को प्रायोरिटी दी जाएगी। कैसे कैसे को, मेडिकल पैसेंजर्स को, कि किसी देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो उन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी कि सब आप आगे जाओ, लाइक दैट। सो दीज आर द 13 वाइटल इंफॉर्मेशन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एट लीस्ट फॉर अ फ्लाइट प्लान। तो 22-24 जितने इंफॉर्मेशन है उतने में से 13 आपको याद रहने चाहिए। नेवर बी वरीड, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू रिगार्डिंग द फ्लाइट प्लान। हम लोग क्लास में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर किसी क्वेश्चन में फ्लाइट प्लान आप लोगों को ही बोलना है। तो शुरू में आप देख देख के बोलोगे, धीरे धीरे वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा याद कैसे रहेगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी कि आपको बाय डिफॉल्ट याद हो ही जाएगा।
So these are the vital information of flight plan. अब इसमें से मैंने दो चीज बोला था कि एक वेक टर्बुलेंस पढ़ाऊंगा और एक पढ़ाऊंगा एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन या कॉल साइन। तो पहले देखते हैं वेक टर्बुलेंस को। तो वेक टर्बुलेंस क्या होता है? बाय द डेफिनेशन इट इज क्लियर कि अगर आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन होता है, ठीक है, तो वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करेगा अपने पीछे। ऐसा नहीं है कि एयरबस के पीछे एक छोटा सा एयरक्राफ्ट खड़ा हो जाए और आपने एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन कर दिया, बस पता चला उस एयरक्राफ्ट को उड़ा देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके एयरक्राफ्ट के पीछे कोई दूसरा छोटा एयरक्राफ्ट तो नहीं पार्क है। तो ये आपके साथ साथ एटीसी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि उस बड़े एयरक्राफ्ट के पीछे या किसी भी यू कैन से जेट इंजन वाले जनरली एयरक्राफ्ट के पीछे कोई दूसरा छोटा एयरक्राफ्ट पार्क नहीं हो। तो कोई भी एयरक्राफ्ट अपने इंजन ऑन करने से कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करेगा, ये डिसाइड करता है उसका वेक टर्बुलेंस कैटेगरी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू हाउ। सो बेसिकली वेक टर्बुलेंस का 3 कैटेगरी। ठीक है, इज एवरीवन अवेलेबल? सब लोग सुन रहे हैं? यस, नो? यस सर। अनदर वन, अनदर स्टेशंस? कोई नहीं। सो वेक टर्बुलेंस कैटेगरी कितने हैं? ठीक है, तो 3 वेक टर्बुलेंस कैटेगरी बनाए गए, लो, मीडियम या हाई। ठीक है, या फिर यू कैन से लाइट, मॉडरेट और हेवी। सबका मतलब एक ही है, लो, मीडियम या हाई। ठीक है, लाइट, मॉडरेट और हेवी। कि आपका जो एयरक्राफ्ट है अगर वो चालू होगा, भले वो ड्रोन ही क्यों नहीं हो, उसमें भी प्रोपल्सन सिस्टम कुछ ना कुछ रहेगा ही, चाहे उसका फैन ब्लेड रहे या फिर उसका, अगर आजकल इंजन लगना शुरू हुआ है, देन दैट गैस टरबाइन इंजन, जो भी रहे, इंजन तो रहेगा ही, चाहे जिस भी टाइप का रहे, चाहे वो मोटर लगा के फैन ब्लेड लगाओ। तो आपका व्हीकल, आपका एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा हवा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और बेसिकली इसमें पता करने जैसा कुछ नहीं है, ये सिंपल कैटेगराइजेशन है। तो टोटल 3 टाइप के वेक टर्बुलेंस कैटेगरी, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, एंड लाइट, मॉडरेट और हेवी, वट एवर यू कैन से। क्या होता है, जनरली एक थ्योरी है कि जितना ज्यादा बड़ा आपका एयरक्राफ्ट उतना ज्यादा उसका वेक टर्बुलेंस। क्यों? क्योंकि बड़े एयरक्राफ्ट को खींचने के लिए इंजन भी बड़े चाहिए। गॉट इट? तो एक थ्योरी है कि अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट 7000 किलो से कम है तो उसको रखा जाएगा वेक टर्बुलेंस कैटेगरी लो में। क्लियर? और अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट 7000 किलो से लेके 1,36,000 किलो के बीच में है तो उसको रखा जाएगा वेक टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम में। और अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट 1,36,000 किलो से ज्यादा है तो उसको रखा जाएगा वेक टर्बुलेंस कैटेगरी हेवी। तो छोटे एयरक्राफ्ट के केस में क्या हो गए, आप लोग नोट डाउन कर लो मॉडल। ठीक है, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, सेस्ना 172, 152 या छोटे मोटे ड्रोन्स। ठीक है, तो 7000 किलो से छोटे के एयरक्राफ्ट, एम्बरर 500, लाइक दैट, ये सब जो मॉडल हैं आपके किंग एयर वाले जहाज, किंग एयर, B200, C90, ये सब जो एयरक्राफ्ट हैं ये सब आते हैं 7000 किलो से कम और वेक टर्बुलेंस कैटेगरी लाइट या लो। देन वेक टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम, मतलब जितने भी आपके एयरबस 320, 319, बोइंग 737, ठीक है, ये सब जितने भी एयरलाइनर्स के एयरक्राफ्ट हैं डोमेस्टिक वाले, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू वेक टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम। सबका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट
1,36,000 किलो से कम ही है। तो एयरलाइनर के जितने सारे जहाज देखते हो सब मीडियम वेग टर्बुलेंस में, ठीक है। जनरल एविएशन में भी आपके बम्बार्डियर के एयरक्राफ्ट, ठीक है, जितने भी प्राइवेट चार्टर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट जेट, सबके सब वेग टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम। देन बोइंग 777, ठीक है, एयरबस 350, ये सब एयरक्राफ्ट जो है ये सब है वेग टर्बुलेंस कैटेगरी हेवी। और एयरबस 380 ये आता है सुपर हेवी। तो सिविलियन में एकमात्र जहाज जिसका वेग टर्बुलेंस कैटेगरी कहलाता है सुपर हेवी। इज दैट क्लियर? सो जितना बड़ा Yes, आपके sir. एयरक्राफ्ट का साइज उतना ज्यादा आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस। अब आप बोलोगे ये इतना जरूरी क्यों था कि आपने इस पे इतना ध्यान देके पढ़ाया? लुक एट वन रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था और दैट इज रिकॉर्डेड एज वेल। एयरबस 380, ठीक है, देखो ये रियल टाइम का न्यूज है। एयरबस 380 एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसके नीचे एक प्राइवेट जेट फ्लाई कर रहा है, बम्बार्डियर चैलेंजर 604। ये जो एयरक्राफ्ट है ना बम्बार्डियर चैलेंजर, ये प्राइवेट जेट्स के मामले में वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। प्राइवेट जेट के मामले में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। और एयरबस 380 सिविलियन एयरक्राफ्ट में लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। तो इवन आफ्टर बीइंग 1,000 फीट अपार्ट ये वाला एयरक्राफ्ट पूरा पलटी मार दिया। देखो वेग टर्बुलेंस का इफेक्ट क्या हो गया। नाउ थिंक अबाउट दिस, ये तो क्रैश है, ठीक है। थिंक अबाउट पैसेंजर्स एंड पायलट्स, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये तो एक तरह से क्रैश है। तो वेग टर्बुलेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन रखोगे तो वो आपके एयरक्राफ्ट के इंजन से जो थ्रस्ट निकलेगा, जो गैस निकलेगा, वो दूसरे किसी एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस पता होना चाहिए। और जब भी आप एटीसी से बात करोगे और उसमें कभी भी आपको अपने एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करने की जरूरत पड़े तो आप अपना वेग टर्बुलेंस जरूर मेंशन करोगे कि जिस भी एयरक्राफ्ट में आप बैठे हो उसका वेग टर्बुलेंस कितना है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट वेग टर्बुलेंस कैटेगरी। टोटल 3, लो मीडियम हाई on the basis of weight. Now, the next topic we are going to see the alternate of call sign, and this is going to be last topic for today. ठीक है, alternate of call sign। आपका कॉल साइन या तो हो सकता है VT मार्क से या फिर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटा कोड प्लस फ्लाइट आईडी। अब आइटा कोड क्या होता है? किसी भी टाइप के एविएशन कंपनी है, ठीक है, वो जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं IATA में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसमें जाके आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। बेसिकली दिस इज अ ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप मेंबर हो सकते हो कि हमारा भी कंपनी एयरलाइनर में है, एविएशन में है, इसको आप रजिस्टर कर लीजिए। सो आइटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके मेंबर ग्रुप में अगर आप हो तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो लगभग सारे एयरलाइनर ने अपना आइटा कोड लेके रखा है। इंडिगो, इंडिगो का आइटा कोड है वेरी फेमस 6E। आप देखते होंगे कि जो कोई भी पर्सन ज्वाइन करते हैं इंडिगो में क्या काम करते हैं तो लिखता है ऑफिशियली 6E, मतलब दे हैव ज्वाइंड इंडिगो। तो 6E इज द आइटा कोड ऑफ इंडिगो। एयर इंडिया का आइटा कोड है AI, ठीक है। स्पाइस जेट का SG, सियरा गोल्फ, SJ नहीं, SG, स्पाइस जेट। जब विस्तारा था तो इट वाज UK, नाउ दे आर AI। गो एयर जो बंद हो गया उसका था G8। आकाशा एयर का है QP, क्यूबेक पापा। एयर एशिया इंडिया जो कि बंद हो गया I5।
एयर इंडिया एक्सप्रेस IX, पहले था ये IX, नाउअडेज दे आर AIX, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है। देन अलायंस एयर, उसका है नाइनर आई, फ्लाई बिग सिएरा नाइनर। देन स्टार एयर, यह है S5 क्रिश, सॉरी हाई स्टार, ठीक है, S5 हाई स्टार। तो आप चाहो तो किसी एयरक्राफ्ट का नाम ले सकते हो एज विक्टर टैंगो रोमियो सिएरा माइक, या फिर आप बोल सकते हो आई फ्लाई 462, इस टाइप से। एयर इंडिया 768, स्पाइस जेट 432, आकाशा एयर 223, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो किस आइटा कोड को क्या पढ़ेंगे वो लिखा हुआ है इधर। 6E को क्या पढ़ना है, आई फ्लाई, AI एयर इंडिया, SG स्पाइस जेट, UK विस्तारा, गो फर्स्ट जो कि बंद हो गया गो फर्स्ट, QP आकाशा एयर, ये दोनों तो अभी बंद है। सो बेसिकली इफ AIX तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर को अलाइड, फ्लाबिग वाले को क्रिस एंड स्टार एयर वाले को हाई स्टार। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उसको आप लोग समझना। आई फ्लाई 462, ठीक है, आकाशा एयर 442, हाई स्टार 768, इस टाइप से, एयर इंडिया एक्सप्रेस 662, ठीक है, एयर इंडिया 116, लाइक दिस, ठीक है। तो चाहो तो आप VT रजिस्ट्रेशन मार्क्स बोल लो या फिर उसका कॉल साइन बोल लो इन द फॉर्मेट ऑफ आइटा प्लस फ्लाइट ID. I hope this one is clear to all. Yes, sir. ठीक है। एंड ये टोटल 8 या 9 आपको आइटा कोड्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। इसका कोई शॉर्टकट या किसी भी टाइप का प्रैक्टिस नहीं होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। नो अदर ऑप्शन देन ट्राई रिकॉलिंग इट बाय प्रैक्टिसिंग, खुद से रटने के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद होने चाहिए चाहे जैसे याद करो, ठीक है। लाइक फ्लाइट प्लान एंड लोकेशन डिजिग्नेटर, ये मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन सबके आइटा कोड आपको याद होने चाहिए, इसका किसी भी टाइप का प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से रटो और खुद से आपको याद रखना है कम से कम ये 8-10 जो एविएशन के पॉपुलर एयरलाइंस है उनका, ठीक है। So you can tell your aircraft either by the registration marks or ITA code plus flight ID. तो अब जहां पे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, चाहे तो इसमें आप लिख सकते हो विक्टर टैंगो रोमियो सिएरा माइक, या फिर आप लिख सकते हो आई फ्लाई 462, लाइक दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। सो this is it, I guess. No more students are today in the class, so opening a critical topic is not going to help all, ठीक है। So let me look at the calendar first, what is to be open as a new topic। कोई छोटा सा टॉपिक कवर अप करके क्लास को फिनिश करते हैं। फ्लाइट रूल हो गया, आइटा कोड्स हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे भी हो गया। I think this much is enough. We shall not stretch so far, ताकि समझने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो, but this much is enough for today. We'll see tomorrow. If nobody, means nobody nahi, if fewer students will be available tomorrow, then we'll stretch for further topics. But for today, I think this Okay, much is sir. enough. ठीक है? We'll Okay, sir. continue. We'll continue same as tomorrow, 9 o'clock.